Good afternoon and welcome to everyone once again in our CNE. Myself Perlin Deepak, trained cardiac assistant matron in UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center. As we discuss about our last CNE, cardiac disease are the leading cause of death all over country. It is important to detect cardiovascular disease as early as possible so that management with counseling and medication can begin for people to enjoy high quality of life with the help of healthcare team. So, today our topic is overview of cardiac disease part 2. Now, first I would like to invite Ms. Krishna Chaudhary and she will deliver the knowledge on valvular heart disease. Good afternoon all of you. Myself Krishna Chaudhary. I am working as a trained cardiac staff nurse, critical care grade 1 in UN Mehta Institute of Cardiology Research Center. Today my topic is valvular heart disease. So first upon I would like to thank respected director sir, my superior and all my entire nursing team who gave me this incredible opportunity to participate in this CNE. So let's start a topic valvular heart disease. First अपन हम देखेंगे introduction. Blood is pumped through the heart in only one direction. Heart valve play key role in this one-way blood flow, opening and closing which each heartbeat. तो हमारी ह्यूमन हार्ट एनाटॉमी में 4 वाल्व होते हैं. फर्स्ट ट्राइकस्पिड वाल्व, सेकंड पल्मोनरी वाल्व, थर्ड एओर्टिक वाल्व एंड फोर्थ माइट्रल वाल्व. तो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ट्राइकस्पिड वाल्व लोकेटेड बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकुलर. पल्मोनरी वाल्व लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकुलर टू द pulmonary artery. Mitral valve located between the left atrium and left ventricular. Aortic valve located between the left ventricular to the aorta. आगे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में valvular heart disease occur when the heart valve fail the open and close properly. valvular heart disease को हम स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में भी गिना जा सकता है. उसमें सिंगल और मोर हार्ट वाल्व माल फंक्शनिंग के साथ इन्वॉल्व होते हैं. सीवियर वाल्व डिजीज़ को अर्ली ट्रीट नहीं किया जाए तो कई बार हार्ट फेल्यूर और पेशेंट की प्री मैच्योर डेथ भी देखने को मिलती है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ valvular heart disease. Then 2 types of problem can disturb blood flow through the valve, regurgitation और stenosis. फर्स्ट अपन हम देखेंगे स्टेनोसिस. The valve opening narrow. The valve may become fused or thick that the valve cannot open freely. Then obstruct the normal flow of the blood. नेक्स्ट हम देखेंगे उसमें ही रिगर्जिटेशन. रिगर्जिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड insufficiency or incompetence. Regurgitation happen when a valve doesn't close properly, blood leak backward and not maintaining one way flow. ये इमेज में भी हम देख सकते हैं. आगे हम देखेंगे रिगर्जिटेशन और स्टेनोसिस का वीडियो. This is valve disease. If you or a loved one has been diagnosed with this condition, it's important that you understand how it occurs and what you can do about it. The heart has 4 valves: aortic, mitral, tricuspid, and pulmonary. These valves are designed to open and close every time your heart beats. When they are working like they should, your heart valves ensure that your body is getting the oxygen-rich blood that it needs. Heart valve disease is a condition that occurs when one or more of your 4 heart valves stops working properly, or they may allow blood to leak back into the heart's chambers. When this happens, your heart has to work harder, and its ability to pump blood is affected. There are several types of heart valve disease, but they generally fall into one of 2 categories. Valvular stenosis occurs when the valve's leaflets become stiff or fused and won't open fully. All 4 of the valves can develop stenosis, leading to the conditions tricuspid stenosis, pulmonic stenosis, mitral stenosis, and aortic stenosis. Valvular regurgitation is also known as a leaky valve and is the result of a valve not closing tightly. Depending on which valve is affected,
This is known as pulmonary regurgitation, mitral regurgitation, aortic regurgitation, or tricuspid regurgitation. जैसे आगे हम लोगों ने वीडियो देखा अभी स्टेनोसिस और रिगर्जिटेशन, तो स्टेनोसिस मीन के valve doesn't open properly and then regurgitation valve doesn't close properly. तो उसमें हम टाइप्स देखेंगे. फर्स्ट mitral stenosis, सेकंड mitral regurgitation, थर्ड aortic stenosis, फोर्थ aortic regurgitation, फिफ्थ tricuspid stenosis, सिक्स tricuspid regurgitation, 7 pulmonary stenosis and 8 pulmonary regurgitation. इटियोलॉजी में हम देखेंगे कि पेशेंट को कॉन्जिनेटल हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री होती है. नेक्स्ट रूमेटिक हार्ट डिजीज़, सीनाइल डिजनरेशन, जिसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मेमोरी लॉस, वीकनिंग द सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट. हार्ट का जो मसल्स है उसमें वीक हो जाते हैं. इन्फेक्शन बैक्टीरियल एंडोकार्डियाटिक, और ज़्यादातर पेशेंट को रेडिएशन ट्रीटमेंट चल रही हो तभी ये कंडीशन देखने को मिलती है. आगे हम देखेंगे वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ के साइन और सिम्टम्स. तो साइन और सिम्टम्स में पेशेंट की जो चेस्ट होती है वो फ्लटरिंग सेंसेशन देखने को मिलते हैं. चेस्ट पेन, उसको हम एंजाइना भी बोल सकते हैं. शॉर्ट ऑफ द ब्रीथ देखने को मिलता है. फटीग और पेशेंट ज़्यादा वीकनेस फील करता है. पेशेंट टायर्ड हो जाता है. रैपिड वेट गेन होता है. लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है. कफिंग और एंकल्स में स्वेलिंग, और लास्ट में एब्डोमिनल ब्लॉटिंग देखने को मिलता है. माइट्रल स्टेनोसिस. माइट्रल स्टेनोसिस मीनिंग कि माइट्रल वाल्व का नैरो हो जाना. माइट्रल वाल्व जब नैरो होता है तो रिजल्टिंग इन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर. उसकी पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि माइट्रल वाल्व जब नैरो होता है तब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर दोनों में क्या चेंजेस आता है. तो माइट्रल वाल्व नैरो हो जाने के कारण लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है. उसके कारण क्या होता है कि पल्मोनरी प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता है और राइट साइड हार्ट फेल देखने को मिलता है. वैसे ही माइट्रल वाल्व नैरो होता है तब लेफ्ट वेंट्रिकुलर में क्या चेंजेस आते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का जो ब्लड का फ्लो है वो डिक्रीज होता है. उसके कारण कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज होता है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर एट्रोपी देखने को मिलती है. आगे हम देखेंगे माइट्रल रिगर्जिटेशन. तो नॉर्मली माइट्रल वाल्व बंद होने के कारण ब्लड का जो फ्लो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर से लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाता है. पर इस बीमारी में क्या होता है कि माइट्रल वाल्व सही तरीके से बंद नहीं होने के कारण ब्लड का जो फ्लो है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर से लेफ्ट एट्रियम में सम बैक फ्लो चला जाता है. पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ माइट्रल वाल्व, द बैक फ्लो ऑफ ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम, तो डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन लेफ्ट वेंट्रिकुलर, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट. वैसे ही लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है. लेफ्ट एट्रियम हाइपोट्रोपी देखने को मिलती है. उसके कारण इंक्रीज पल्मोनरी प्रेशर देखने को मिलता है और राइट साइड हार्ट फेल्यूर देखने को मिलता है. आगे हम देखेंगे एओर्टिक स्टेनोसिस. Aortic stenosis occur when the aortic valve become narrow and reduce or restrict blood flow from the left ventricular into aorta during ventricular systole. इमेज में हम देख सकते हैं. पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि एओर्टिक वाल्व जब नैरो होता है तब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकुलर टू द एओर्टा, इनकम्प्लीट इम्प्लांटिंग ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोपी एंड रिड्यूस कार्डियक आउटपुट देखने को मिलता है. आगे हम देखेंगे एओर्टिक रिगर्जिटेशन. एओर्टिक रिगर्जिटेशन में फेल्यूर ऑफ एओर्टिक वाल्व टू क्लोज completely causes backflow of blood into left ventricle. उसकी पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ एओर्टिक वाल्व. तो उसकी वजह से क्या होता है कि बैकफ्लो ऑफ ब्लड टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर
लेफ्ट साइड वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी देखने को मिलती है और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। आगे हम देखेंगे ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस मतलब कि ट्राइकस्पिड वाल्व का नैरो हो जाना। ट्राइकस्पिड वाल्व रिजल्टिंग इन ऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो फ्रॉम द राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकुलर। इट इज एक्सट्रीमली अनकॉमन एंड ऑक्यूर वेरी रेयरली। उसकी पैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि नैरोविंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, obstruction of the blood flow from right atrium to right ventricular, decrease right ventricular output देखने को मिलेगा, blood accumulate in systemic circulation, decrease left ventricular filling, increase systemic pressure and last decrease cardiac output देखने को मिलेगा। आगे हम देखेंगे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। Tricuspid regurgitation occur when the tricuspid valve fail, the completely closed during the ventricular systole and some blood flow backward into the right atrium, जैसे यहाँ पे इमेज में हम देख सकते हैं। उसकी पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे incomplete closure of tricuspid valve, backflow of blood to right atrium, decrease right ventricular output, decrease blood flow toward lungs or same as condition decrease cardiac output। आगे हम देखेंगे पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस narrowing of the pulmonary valve resulting in obstructed blood flow from the right ventricular to pulmonary valve. It is congenital in most of cases. Incomplete implanting of right ventricular hypertrophy and then reduced left ventricular filling and cardiac output। आगे हम देखेंगे pulmonary regurgitation। Pulmonary regurgitation occur when an incomplete pulmonary valve allow blood to flow backward from the pulmonary valve into right ventricular during diastole। यहाँ पे इमेज में हम देख सकते हैं। आगे है पैथोफिजियोलॉजी उसकी। तो पैथोफिजियोलॉजी में इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व, बैकफ्लो ऑफ ब्लड टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक टेस्ट, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हम लोगों ने आगे देख ही लिया है साइन और सिम्टम्स में कि पेशेंट की रूमेटिक हार्ट डिजीज़ हो, ऐसी हिस्ट्री से भी पता चलता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट टायर्ड हो जाता है, वीकनेस फील करता है, एंकल्स में स्वेलिंग आता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है, एंजाइना देखने को मिलती है। तो यही फिजिकल एग्जामिनेशन से पता चल जाता है। ईसीजी और इकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई। आगे हम देखेंगे ट्रीटमेंट। देन 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि एंटीकोअगुलेंट टू रिड्यूस रिस्क ऑफ थ्रोम्बस, डायूरेटिक फॉर हार्ट फेल्यूर, एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्ट। एंड देन सेकंड सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट में वाल्वुलोप्लास्टी, वाल्व रिपेयर, वाल्व रिप्लेसमेंट एंड बलून वाल्वुलोप्लास्टी। सर्जिकल ट्रीटमेंट का हम अभी वाल्वुलोप्लास्टी, वाल्व रिप्लेसमेंट और बलून वाल्व
जैसे ही हमने आगे वीडियो देखा, ये इमेज है वाल्वुलोप्लास्टी, वाल्व रिप्लेसमेंट। आगे हम देखेंगे द मेन टॉपिक नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ वाल्वुलर हार्ट डिजीज। उसमें हम देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट रिदम कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। नेक्स्ट, इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। Next, ineffective breathing pattern related to imbalance of oxygen supply. Acute pain related to myocardial ischemia देखने को मिलेगा। Activity intolerance related to imbalance between the myocardial oxygen supply and need. Risk of bleeding related to thrombolytic therapy. And next, anxiety related to lack of knowledge and knowledge deficit related to lack of information. आगे हम देखेंगे डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट रिदम। उसमें हम देखेंगे नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में अटैच द पेशेंट कार्डियक मॉनिटर एज सुन एज पॉसिबल, चेक एंड मॉनिटर वाइटल साइन, गिव सेमीफाउलर पोजिशन, मॉनिटर वैल्यू ऑफ एबीजी एनालाइज, ऑब्जर्व स्किन ऑफ द पेशेंट, मॉनिटर इंटेक आउटपुट चार्ट, मॉनिटर हार्ट साउंड, and then give medication according to doctor order as per treatment sheet. आगे हम देखेंगे impaired tissue perfusion related to decrease in cardiac output. तो provide complete bed rest to patient, monitor value of ABG analyze and oxygen saturation. Next, assist patient in daily living activity and then give forward position to the patient. Administer oxygen as prescribed, assess the skin periodically and administer pharmacology therapy as prescribed. आगे हम देखेंगे acute pain related to myocardial ischemia. Assess the intensity, location, radiation of the pain. Vital sign है वो मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को कम्प्लीटली बेड रेस्ट देंगे, ECG है वो भी मॉनिटर करेंगे, पेशेंट को क्लैम एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे, और लास्ट एडमिनिस्टर इंजेक्शन मॉर्फिन एंड इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन टू पेशेंट एज पर प्रिस्क्राइब. इंजेक्शन मॉर्फिन प्रिवेंट द ट्रेकिकार्डिया बाय sympathetic drugs after surgery to relieve moderate to severe pain as per prescribed doctor order treatment sheet, and injection nitroglycerin to decrease the preload and heart failure symptoms as per prescribed doctor order. Thank you for listening me. Thank you, Krishna sister. Now our second topic is peripheral vascular disease, and I will welcome to Miss Anjali Solanki, sister in charge, and she will deliver the knowledge on peripheral vascular disease. Good afternoon all. I am Mrs. Anjali Amit Solanki, working as a cardiac sister in charge in UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center. I heartily thanks to our Honorable Director Sir and the entire nursing team for giving me this opportunity. Today I am speak about the peripheral vascular disease. So what do we mean by peripheral vascular disease? Peripheral vascular disease is a slow and progressive circulation disorder caused by narrowing, blockage or spasm in blood vessels. Peripheral vascular disease में आप क्या देखते हैं, जो जिसमें इसमें सर्कुलेशन डिसऑर्डर है जो ब्लड वेसल के नैरो, ब्लॉकेज और स्पैज्म होने के कारण होता है. चलो आप देखते हैं कि इसके कारण क्या हैं. व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? द फर्स्ट वन इज एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस मीन plaque and fats deposition. The second one is embolism. Embolism is clots. Then thrombosis due to trauma, due to vasospasm, inflammation, family history. अगर फैमिली में किसी को मेंबर में प्रॉब्लम है तो ये हेरिडिटी डिजीज़ है तो उसके भी किसी और फैमिली मेंबर में होने के चांसेस होते हैं. Then sedentary lifestyle and inactive lifestyle. Then stress, autoimmunity.
ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर के कारण भी होते हैं, जैसे कि SLE, RA रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड जॉगरेन डिसीज, ये सब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। और स्मोकिंग के कारण हो सकता है हाइपरटेंशन एंड ओबेसिटी। चलो अब इसके पैथोफिजियोलॉजी हम देखते हैं। तो इसे जो सब रिस्क फैक्टर्स है उसके कारण क्या होता है, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जिससे धीमे धीरे पार्शियल और कंप्लीट प्लाक फॉर्मेशन होने लगता है। और जो धीमे धीमे जो इसकी जो लेयर होती है वो इलास्टिसिटी खोने लगती है ब्लड वेसल्स की, और जो आर्टेरियल वॉल होते हैं वो एकदम वीक हो जाते हैं, जिससे थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो जाता है। और जब भी कोई एक्सरसाइज या पेशेंट एक्सरसाइज करता है तो इनएडिक्वेट ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई के कारण ये सब सिम्टम्स उसमें देखने को मिलते हैं। अभी हम देखते हैं कि इसके टाइप्स क्या हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ PVD? तो फर्स्ट वन इज थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस क्या होता है? थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस इज एक्यूट इन्फ्लेमेटरी लीजन एंड ऑक्लूसिव डिजीज। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है और ब्लड क्लॉट्स के कारण ये ब्लॉक हो जाता है। और ये ज़्यादा स्मोकिंग के जो व्यक्ति ज़्यादा स्मोकिंग करता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा आपको मेल में देखने मिलता है 20 to 40 ईयर्स एज में। इसके अभी साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले इंटरमिटेड क्लॉडिकेशन, इसलिए इसमें पेशेंट को क्रैम्पिंग पेन बहुत होता है और जब वो एकदम रेस्ट में होता है तभी भी उसको बहुत पेन होता है। और ड्यू टू कोल्डनेस, ड्यू टू पेरेस्थीसिया, ड्यू टू वीक और एब्सेंट इन पोस्टीरियर टिबिया डोर्सालिस पैडिस, एक्सट्रीमिटीज़ आर साइनोटिक, जो एक्सट्रीमिटीज़ होती है एकदम साइनोटिक हो जाती हैं और एल्सरेशन और गैंग्रीन होने के चांसेस होते हैं। अब इस यू कैन क्लियरली सी दिस इन पिक्चर, द ब्लड वेसल्स बिकम ऑब्स्ट्रक्टेड, ब्लड वेसल्स एकदम ऑब्स्ट्रक्टेड हो गए हैं, जिससे जो टिश्यू है डेड हो गई है और गैंग्रीन और अल्सरेशन फॉर्म हो गया है। और इसमें हम क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे जिससे पेशेंट को हम सब ये कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि स्मोकिंग ना करें एंड अवॉइड ट्रॉमा, इमोशनल सपोर्ट, वी गिव इमोशनल सपोर्ट टू पेशेंट, avoid injuries to feet, and in case if the gangrene is very extent and pain is severe and the very severe infection is there, then amputation of leg. Then the second disease is Raynaud's. It is Raynaud's disease में अब क्या होता है, इसमें जो हाथ की उंगलियां होती है, फिंगर्स होती हैं, वाइट और पेल दिखने लगती है जो, और इसका कारण ज़्यादातर ये ठंडे से होती है और ब्लड स्पैज़म होने के कारण हो जाते हैं। और इसमें फिर आप धीमे धीमे आपको ये अमुक पार्ट्स में फिंगर्स में वाइट दिखने लग जाते हैं। अब इसके कारण क्या है, इसको दो भागों में डिवाइड करा है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में कारण क्या है, ड्यू टू कोल्ड टेम्परेचर, ड्यू टू स्ट्रेस एंड ड्यू टू ब्लड वेसल्स इन स्पाज्म। एंड सेकेंडरी ड्यू टू स्क्लेरोड्रोमा, स्क्लेरोड्रोमा इज अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, देन ल्यूपस, SLE, it is an autoimmune disorder, then rheumatoid arthritis, Sjogren syndrome, it's also autoimmune disorders, then disease of the arteries, hands and foot, and due to some medicines, smoking and carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome में क्या होता है, जो हमारे हाथ की जो मीडियन नर्व होती है वो पिंच होती है, तो उसके कारण भी ये हो सकता है ना। इसमें हमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, तो आर्टेरियल स्पैज़म के कारण ब्लड फ्लो एकदम स्लगिश हो जाता है। स्पैज़म होने के कारण जो हाथ होते हैं रेड और उसमें टिंगलिंग और थ्रॉम्बिंग सेंसेशन पेशेंट फील करता है। और अगर लॉन्ग लास्टिंग रेनॉल्ड्स डिजीज़ हो तो अल्सरेशन और होने के भी चांसेस होते हैं फिंगर्स और टोज़ में। आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं ये हाथों में कैसे वाइट और पेल हो गए हैं जो फिंगर्स, ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन। Now, what are the investigation which suggest for the patient in this disease? तो first one is cold stimulation test. Cold stimulation test में क्या होता है, जो पेशेंट की फिंगर्स होते हैं वो ठंडे पानी में हम थोड़ी देर डुबो के रखते हैं और उसमें ये पता चलता है कि उसको रेनॉल्ड्स डिजीज़ है कि नहीं। देन नेल फोल्ड कैपिलरोस्कोपी, ANA is anti-nuclear antibody, erythrocyte sedimentation rate, C reactive protein.
And what are the intervention we can do for this patient? So first we have to prevent injury in feet and hand, provide comfort to the patient, avoid smoking and especially avoid exposure to the cold. अब बहुत ठंड है तो पेशेंट को हमें बहुत ज़्यादा ठंड में जाने नहीं देना है. And advise patient to wear warm clothes, gloves and socks. Avoid drugs that will cause vasoconstriction. Avoid caffeine and take care of feet and hand. Control stress and do small exercising. Now the third disease is aneurysm. Aneurysm is a localized or diffuse enlargement of an artery. इसमें क्या होता है, जो आर्टरी में होते हैं जो लोकलाइज पार्ट हो जाता है वो एकदम बल्ज हो जाता है, तो उसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं. और ये ज़्यादातर ब्लड वेसल जो एकदम वीक हो जाता है, ट्रॉमा होता है, वैस्कुलर डिजीज़ कोई होता है और इन्फेक्शन और एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण एन्यूरिज्म होने के चांसेस हैं. इसमें टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म देखते हैं. एन्यूरिज्म कई टाइप में होते हैं. तो सबसे पहले सेक्युलर एन्यूरिज्म. सेक्युलर एन्यूरिज्म में ओनली लोकलाइज पार्ट जो होता है वो बल्ज होता है. फिर सेकेंड है फ्यूसिफॉर्म एन्यूरिज्म. इसमें क्या होता है, जो मिडल पार्ट का अंटायर सर्कमफ्रेंस होता है वो आर्टेरियल वॉल का बल्ज हो जाता है. और जो डिसेंटिक एन्यूरिज्म है इसमें हेमरेज के कारण दोनों पार्ट में स्प्लिट्स हो जाते हैं. आप इस फोटो में क्लियरली देख सकते हैं सेक्युलर एन्यूरिज्म जो आर्टरी का ओनली लोकल पार्ट जो बल्ज हो गया है, और जो फ्यूसिफॉर्म में है उसका मीडियल पार्ट देखिए आखा सर्कमफ्रेंस जो है वो बल्ज हो गया और उसमें डिसेंटिंग, तीसरे में डिसेंटिंग में आप देख सकते हैं दो पार्ट में स्प्लिट हो गए हैं. और अलग टाइप और अदर टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म्स, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एन्यूरिज्म. वन इज एरोटिक एन्यूरिज्म and second is cerebral aneurysm, and in others peripheral aneurysm. In aortic aneurysm also there are two types. First in abdominal aortic aneurysm and second is thoracic aortic aneurysm. So what are the diagnostic we advise for this patient? First we advise just an abdominal x-ray. It helps to diagnose the aortic aneurysm. And the ultrasound, it used to determine the size, shape and location of the aneurysm. Then CT scan and MRI. CT scan MRI हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें एन्यूरिज्म के हम पिन पॉइंट और साइज और एग्जैक्ट लोकेशन हम देख पाते हैं. अब हम एक एक करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं कि थोरेसिक एरोटिक एन्यूरिज्म क्या है. तो थोरेटिक एन्यूरिज्म क्या है, जब एन्यूरिज्म एक थोरेसिक एरिया में हो जाता है उसे हम थोरेटिक एरोटिक एन्यूरिज्म बोलते हैं. वो ज़्यादातर हार्ट में असेंडिंग और ट्रांसफर और डिसेंडिंग एरोटा में देखने को मिलता है. इसके कॉसेस क्या है, तो आर्थरोस्क्लेरोसिस, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, वेस्कुलाइटिस, कोकेन यूज ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स एंड ड्यू टू प्रीवियस एरोटा इंजुरी, ट्रॉमेटिक इंजुरी ड्यू टू व्हीकल एक्सीडेंट और फॉल. व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? इस पेशेंट में हम क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलता है. सबसे पहले तो चेस्ट पेन. पेशेंट इज कंप्लेन अबाउट चेस्ट पेन, पेन इन जॉ, नेक एंड बैक, cough, dyspnea, hoarseness in voice and dysphagia. Second is abdominal aortic aneurysm. Aneurysm that occurs in the abdominal portion is called abdominal aortic aneurysm. What the signs and symptoms is seen in this patient? First of all, the patient is feeling throbbing pain in the abdomen, dyspnea, deep pain in the back or the side of the abdomen, and if any reason the arterial this aneurysm ruptures, then there will be cause of severe pain in lower abdomen, constipation, nausea and vomiting, problem with the urination, rapid heart rate when patient is stand up, and it leads to shock also. What are the complications we have seen in this patient? If the aneurysm is large, then it is the chances of abdominal ischia and patient can lead to death. Now, what are the intervention we can do in this patient? First is medical management. We can give beta blocker therapy to the patient like metoprolol, anticoagulant therapy like heparin, antiplatelet therapy like silestazole and clopidogrel, AC inhibitors and statin therapy. And for surgical management, we can do resection of the lesion and replacement it with the graft and endovascular repair. You can clearly see in this picture how this aneurysm is replaced with the new graft. This is the aorta and that other picture is abdominal aorta, and it is replaced with this stent.
Now the third one is brain aneurysm. Brain aneurysm means it's the aneurysm in the arteries of the brain. It is also called berry aneurysm, as the aneurysm is like a berry form. What are the causes of brain aneurysm? It's weakness in the artery wall and hypertension, arteriosclerosis. What are the signs and symptoms being seen if the patient is having brain aneurysm? The patient is complaining of severe headache, nausea, vomiting, eyesight problem, seizure, loss of unconsciousness. Patient will be confused, the drooping eyelid, stiff neck, sensitivity to light, and if any case cerebral aneurysm is burst, then there is a chances of bleeding and patient will got intracranial hematoma. What management we should do if the patient is having cerebral aneurysm? So for the severe headache, we can give painkillers to the patient, calcium channel blockers to reduce the amount of widening and narrowing of the blood vessels, and a vasopressor we can give to the patient. So the drug raises blood pressure and widen blood vessels, and anti-seizure drugs. What the surgical management is doing in this case? So surgical clipping. So in surgical clipping, the doctor had to, they just clip the aneurysm, part of the aneurysm, so the blood flow cannot go in that part. And the third one is peripheral aneurysm. The aneurysm that occurs in arteries is called peripheral aneurysm. Mostly the common location is popliteal femoral arteries. Now we will see the signs and symptoms of peripheral aneurysm. The patient, a pulsating lump that can be felt in the legs or arm pain or cramping when patient is doing exercise. There will be leg or arm pain during rest. Painful sores or ulceration is seen in toes and fingers, and radiating pain and numbness in legs or arm, which is caused by nerve compression and a tissue death due to gangrene. And the fourth one is arterial embolisms. What is arterial embolism? Arterial embolism is the blood clots in the artery. In this, the blood clot is floating in the arterial blood and it is lodged in femoral or popliteal arteries, by which the blood flow is impaired and there is chances of ischemia developed. And you can see in this picture, the blood clots are in the artery walls. Then what are the causes of arterial embolism? So the causes are the damage to the arteries by the disease or any other health condition due to high blood pressure, which also increase the risk of embolism. Then smoking, hardening of the arteries from high cholesterol, surgery that affects blood circulation, and injuries to the arteries due to any accidents or void fall. What are the clinical manifestations we can see in this patient? There is a severe pain, muscular pain and burning and aching sensation. Then digital pulses are absent and extremely become cold, numb and pale. And if the symptom is aggravated, then there is a chances of shock. Then what management we can do in this patient? So first of all, we can give anticoagulants to prevent blood clots, thrombolytic to destroy existing emboli, and for pain we can introduce injections, intravenous injections, and for surgery angioplasty may be performed. Now the fifth disease condition is deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis means clots in the deep veins. इसमें क्या होता है, जो पैरों में जो क्लॉट्स जम जाते हैं ड्यू टू मूवमेंट्स, इन मूवमेंट्स नहीं होती पैरों की, तब ये होने के चांसेस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रक ड्राइवर जो बहुत लॉन्ग जर्नी करते हैं और जिसमें उनकी पैरों की मूवमेंट्स बहुत कम होती है, तो उसमें होने के चांसेस है या तो ड्यू टू सम सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, or if the patient is continues in bed rest, so where the patient's leg movement is very less, so there may be the chances of deep vein thrombosis. And if any cases the embolism is just break down and loose and it stuck in any place like in lungs, so there is a chances of pulmonary embolism. Now we see the clinical manifestation. The patients feel pain and edema of the extremity, Homan signs is present. Do not check the Homan signs if the DVT is already known. The Homan signs video now I'll show you. The Homan sign is used to help detect the presence of deep vein thrombosis in the calf.
To perform the test, grasp the foot and dorsiflex the ankle. The Homan sign is present if the patient reports pain felt deep in the calf. When a deep vein thrombosis is present, squeezing the calf should also reproduce the pain. Please note that the specificity of the test is affected by the presence of other conditions, such as muscle strain. Some authors argue that when a deep vein thrombosis is suspected, this test should not be performed because it could cause the thrombus to break off as an embolus. This can travel through the circulation and lodge in the lung, causing a pulmonary embolism. The veins is affecting that the area is warm, tender and very feel hard. You can see in the pictures the swelling of the legs or the calf muscles. Pain become worsen, become red in that part. Now what is the management we can do? So first of all, the patient requires hospitalization, bed rest with the legs elevated up to 15 to 20 degrees, application of the warm moist to reduce pain, elastic stockings or bandage, anticoagulants, fibrinolysis and vasodilators if needed to control vasal spasm. Now what the diagnostic evaluation we can do? First of all, a Doppler ultrasonography, ankle brachial index to measure arterial blood flow, color flow imaging, transcutaneous oximetry and angiography. What is the complication we seen in this patient? The first is gangrene, and if the gangrene is extended to level and the chances of infection, then there is amputation, then possible of if due to amputation there is a chances of infection and sepsis also. What management we can advise for the patient? So first of all, weight reduction, exercise, advise patient to stop smoking, then blood lipid reduction, statins, nicotinic acids, promote arterial blood flow, pentoxylin, silostazol, it's a vasodilators and tendal blood position. What the surgical management we do in this patient? First of all is embolectomy, adductomy and arterial bypass graft and PTCA. It's a percutaneous translumin angioplasty. And lastly, if any case the leg is very gangrene and is very infected, then amputation. You can see in the picture the plaque is removed and it's stitched. There is some foot care for the patient. तो फर्स्ट इज कीप लेग्स एंड फीट क्लीन एंड ड्राई, तो इसके लिए हमें इसको पैरों को अच्छे से धोना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए, क्रीम अप्लाई करना चाहिए और सॉक्स पहनना चाहिए. और प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज, तो ऑलवेज वेयर शूज़, walk on ground levels, don't go barefoot, report if there are any kind of foot problems. Then for improving blood supply to legs and feet, don't cross your legs while sitting, don't wear knee stockings, don't swim in cold water. What is the prevention for this? So do passive exercise for legs, walk at least 30 minutes daily, avoid cold water for bathing, stop smoking, and if edema occurs then elevate the legs. Avoid massaging to the affected extremities, keep extremity warm and use elastic stockings and on the affected legs. I hope you will understand about the peripheral vascular disease, and thank you for listening me. Thank you. Thank you, Anjali sister. Now I would like to welcome Miss Charmi Desai, and she will continue our next topic on congestive cardiac failure. Good afternoon everyone. My name is Charmi Desai, working as a trained cardiac staff nurse in UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center. I like to thank all the authorities to giving me this opportunity. Today my topic is congestive heart failure, also known as the heart failure. तो जब भी हम हार्ट फेलियर की बात करते हैं या हार्ट फेलियर का नाम सुनते हैं तो हमें डर लगता है कि हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा. पर जब भी हार्ट की पंपिंग एबिलिटी पे अफेक्ट होता है तो हार्ट है वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा. जो हार्ट है वो हमारी बॉडी में एक पंपिंग डिवाइस की तरह काम करता है, जो पूरी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके लंग में भेजता है ऑक्सीजनेशन के लिए, और वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप करता है.
First, we discuss about the what is the heart failure. The heart failure is a chronic and progressive condition where his heart is unable to pump enough blood to the circulatory system. In congestive heart failure, accumulation of fluid in lung and body tissue. Heart failure and congestive heart failure is a long-term condition where the condition is getting worse over the time. When heart is unable to pump enough blood to the circulatory system, there may be chances of organ damage or fluid collection in the lungs. Here you see the two pictures of heart. The right one is a normal heart picture, then left one is the congestive heart failure. तो लेफ्ट वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो वेंट्रिकल्स की वॉल है वो थिक हो जाती है, हाइपरट्रोफिक हो गई है, तो उसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स की पंपिंग एबिलिटी है उस पर अफेक्ट होता है और वो फिलिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है. देन वी डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ हार्ट फेलर. तो यहाँ पे बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो हार्ट फेलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़. कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल या फैटी डिस्पोजिशन की वजह से कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और आगे ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाता है, तो वो एक कारण हो सकता है हार्ट फेलर के लिए. देन सेकेंड कॉज इज़ द हार्ट अटैक. अगर पेशेंट को कोई पास हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो हार्ट अटैक की वजह से जो हार्ट के मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो डैमेज मसल्स की वजह से जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और पंपिंग पावर है वो कम हो जाता है. देन सेकेंड कॉज इज़ हाइपरटेंशन. अगर पेशेंट को अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है और प्रेशर ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से जो हार्ट के चैम्बर्स है वो लार्ज और वीक हो जाते हैं, तो वो भी एक कारण हो सकता है हार्ट फेलर के लिए. देन नेक्स्ट कॉज इज़ हार्ट वाल्व डिजीज़. अगर पेशेंट के वाल्व का फॉर्मेशन अच्छा नहीं हुआ है और तो वो अच्छी तरह से ओपन या क्लोज नहीं हो पाएंगे, उस कंडीशन में हार्ट को ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा, हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाएगा. देन अदर कॉजेज कार्डियोमायोपैथी. कार्डियोमायोपैथी में क्या होगा कि जो हार्ट के मसल्स है वो हाइपरट्रोफिक हो जाएंगे या डायलेट हो जाएंगे या मसल्स है वो कमज़ोर हो जाएंगे, तो उसकी वजह से हार्ट फेलर के चांसेस बढ़ जाएंगे और पंपिंग एबिलिटी कम हो जाएगी. नेक्स्ट कॉज इज कंजेनिटल हार्ट डिजीज. कोई भी बर्थ डिफेक्ट या इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट के जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक्टिविटी है उसमें डिफेक्ट रहती है, तो उसकी वजह से हार्ट फेलर के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन अगर पेशेंट को कोई डिजीज़ कंडीशन है जैसे कि लंग डिजीज़ या कोई किडनी डिजीज़, तो उसकी वजह से वो हमारे शरीर पे अफेक्ट कर सकता है. देन नेक्स्ट कॉज इज डायबिटीज़. डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो लिपिड लेवल है वो एलिवेट रहता है, तो एलिवेट लिपिड लेवल की वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है और उसकी वजह से जो हाइपरटेंशन के चांसेस रहते हैं, तो ये दोनों कारण वो हार्ट फेलर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं. देन एरिथमियाज में अगर जो हार्ट है वो इरेगुलर बीट करेगा तो हार्ट पे ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाएगा, तो वर्कलोड की वजह से जो हार्ट है वो जल्दी थक जाएगा और पंपिंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगी. देन ओबेसिटी. ओबेस पेशेंट के हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा इन कम्पेयर टू द नॉर्मल वेट पर्सन. देन मेडिकेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्ट फेलर. अगर पेशेंट को कोई कीमोथेरापी ड्रग चल रही है तो वो एक कारण बन सकता है हार्ट फेलर के लिए. देन लास्ट कॉज इज बैड हैबिट. अगर पेशेंट को कोई बैड हैबिट है जैसे कि स्मोकिंग या अल्कोहल, तो वो कार्डियक मसल्स पे अफेक्ट करता है और अल्कोहलिक की वजह से कार्डियोमायोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये सारे हो गए हमारे कॉजेज ऑफ हार्ट फेलियर. देन वी डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर. हार्ट फेलियर के मेनली दो टाइप्स होते हैं, राइट साइड हार्ट फेलियर एंड लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर पैथोफिजियोलॉजी. तो कोई पॉजिटिव फैक्टर की वजह से जो वेंट्रिकल से वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड और में पंप नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से जो पूरा ब्लड है वो पूरा बैक फ्लो पल्मोनरी सर्कुलेशन पूरा बैक फ्लो होने लगता है, तो उसकी वजह से पल्मोनरी कंजेशन के चांसेस रहते हैं. पल्मोनरी कंजेशन की वजह से जो लंग है उसमें फ्लूइड लीकेज हो जाता है और पल्मोनरी एडिमा और पेशेंट को डिसअपनिया होना स्टार्ट हो जाता है और दूसरे हार्ट फेलर के सिम्टम्स अराइज होना स्टार्ट होता है. देन वी डिस्कस अबाउट द राइट साइड हार्ट फेलर पैथोफिजियोलॉजी. तो राइट साइड हार्ट फेलर है वो मेनली लेफ्ट साइड हार्ट फेलर की वजह से हो सकता है. लेफ्ट साइड हार्ट फेलर की वजह से जो राइट साइड हार्ट है उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो कम हो जाती है और पंपिंग पावर भी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है पूरा वो वेना केवास में बैक चला जाता है. तो ये सारे प्रोसेस की वजह से पेशेंट में राइट साइड हार्ट फेलर के सिम्टम्स डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन वी
discuss about the types of heart failure. So here is mainly two types of heart failure, right side heart failure and left side heart failure. तो राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होगा कि हार्ट की जो पंपिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से जो ब्लड है पूरा वेना के वाज में बैक चला जाता है। देन लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में मेनली दो टाइप्स होते हैं, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हार्ट की जो मसल्स वॉल है वो एनलार्ज हो जाती है, तो उसकी वजह से जो पंपिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है, तो वो हार्ट है वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप नहीं कर पाता है। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट फेलियर विद द रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। देन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो वेंट्रिकुलर्स की वॉल होती है वो स्टीफ और हाइपोट्रोफिक हो जाती है, तो उसकी वजह से जो फिलिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। फिलिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से जो हार्ट है वो इनफ अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप नहीं कर पाता है। सो दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो जो राइट साइड पे दो पिक्चर्स है वो नॉर्मल हार्ट की पिक्चर्स है जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेज में होता है। जो बीच वाली पिक्चर है वो सिस्टोलिक डिसफंक्शन की है। जब सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है तो जो हम पिक्चर में देख सकते हैं कि हार्ट की जो वॉल है वो एनलार्ज हो जाती है, उसकी वजह से जो हार्ट है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और पंपिंग पावर कम होने की वजह से जो जितने अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप करना पड़ता है वो कम हार्ट पंप नहीं कर पाता है। देन लास्ट में हम देख सकते हैं डायस्टोलिक डिसफंक्शन की पिक्चर, जो वहाँ उसमें जो वेंट्रिकल्स वॉल है वो थिक और हाइपरट्रोफिक हो जाती है, तो उसकी वजह से जो फिलिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और कम फिलिंग कैपेसिटी की वजह से जो हार्ट है वो प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में पंप नहीं कर पाता है। देन वी डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर। तो लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर में हमने देखा कि जो ब्लड का बैक फ्लो है वो पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन में वापस चला जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट में क्या सिम्टम्स अराइज हो सकते हैं। तो पेशेंट रेस्टलेसनेस फील होता है, जब भी पेशेंट लाइ डाउन पोजिशन में होता है तो ब्रीथलेसनेस रहता है, पेशेंट को कभी कभार कन्फ्यूजन रहता है, पेशेंट को साइनोसिस रहता है, पेशेंट को टेकिकार्डिया और टेकिपनिया रहता है और पल्मोनरी कंजेशन की वजह से पेशेंट को कफिंग रहता है, कभी कभार कफिंग में ब्लड भी आता है। जब भी हम पेशेंट को ऑस्कल्टेट करते हैं तो विजिंग या क्रैकल साउंड भी रहता है, पेशेंट को पेरोक्सिमल नोक्चुरल डिसपनिया भी रहता है। तो ये सारे सिम्टम्स हम लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर के पेशेंट में देख सकते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द राइट साइड हार्ट फेलियर सिम्टम्स। हमने देखा कि राइट साइड हार्ट फेलियर में जो ब्लड का बैक फ्लो है सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा में चला जाता है, तो उसकी वजह से पेशेंट को थकावन महसूस होती है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन हो जाता है, सीए कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जैसे कि नोजिया वोमिटिंग है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है और पेशेंट के अब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड अक्यूमुलेशन हो जाता है, असाइटिस हो जाता है और इसकी वजह से पेशेंट को स्प्लीन एनलार्जमेंट और लिवर एनलार्जमेंट हो जाते हैं। एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से पेशेंट को एडिमा होने के चांसेस होते हैं और एडिमा की वजह से पेशेंट का वेट है वो बढ़ जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हम राइट साइड हार्ट फेलियर में देख सकते हैं। देन व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर। तो उसमें है इरेगुलर हार्ट बीट है, सडन कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट वाल्व डिजीज है, फ्लूइड कलेक्शन इन लंग, देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज लाइक किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, माल न्यूट्रिशन। तो ये सारे हार्ट फेलियर के कॉम्प्लिकेशन है। Now we discuss about the stages of heart failure. American Heart Association and American College of Cardiology describe heart failure in 4 स्टेज। तो पहले स्टेज में क्या होता है कि पहले स्टेज है वो प्री हार्ट फेलियर स्टेज होता है, पेशेंट को कोई हार्ट फेलियर के सिम्टम्स अराइज नहीं होते और पेशेंट को कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट भी नहीं होती है, पर कोई पॉजिटिव फैक्टर जैसे कि डायबिटीज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हाइपरटेंशन है, उसकी वजह से पेशेंट में हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन स्टेज बी भी एक प्री हार्ट फेलियर स्टेज है, उसमें भी पेशेंट के हार्ट फेलियर के सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट नहीं होते, पर पेशेंट को कोई स्ट्रक्चरल या फंक्शनल हार्ट डिजीज की वजह से वहाँ पे हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन स्टेज सी में पेशेंट को हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी रहते हैं और पेशेंट को स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिफेक्ट भी रहती है। देन स्टेज डी है वो एडवांस और लास्ट स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर है, उसमें पेशेंट को सीवियर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स दिखाई देते हैं और स्टेज डी वाले पेशेंट को हमें स्पेसिफिक मेडिकेशन या स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। Now we discuss about the NYHA classification of heart failure. New York Heart Association classify heart failure in 4 class according to their clinical activity and sign and symptoms. तो पहले क्लास में क्या होता है कि पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होता है और पेशेंट अपनी एक्टिविटी अपने आप कर पाता है। देन क्लास 2 में पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, ओकेजनली स्वेलिंग रहता है,
पेशेंट अपनी एक्टिविटी अपने आप कर पाता है और पेशेंट को रेस्ट में कोई भी सिम्टम्स नहीं होता है। तो ये सारे पेशेंट हम क्लास 2 में इंक्लूड करते हैं। क्लास 3 में पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स रहता है और पेशेंट की एक्टिविटी में भी थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है। पेशेंट जब भी रेस्ट में होता है तब भी पेशेंट कंफर्टेबल फील कर पाता है। देन क्लास 4 में पेशेंट को सीवियर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट अपनी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर पाता है और क्लास 4 में पेशेंट को स्पेसिफिक इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है। Now we discuss about the diagnostic evaluation of heart failure। यहाँ पे 2 तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव टेस्ट में ब्लड टेस्ट, कोरोनरी एंजियोग्राफी, कार्डियक कैथोग्जी, ये सब टेस्ट इंक्लूड होता है। देन नॉन इन्वेजिव टेस्ट में एक्सरे, ईसीजी, इको, सीटी स्कैन, एमआरआई, स्ट्रेस टेस्ट, ये सारे टेस्ट इंक्लूड होते हैं। अब हम सारे टेस्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ वी कैन सी द इन्वेजिव टेस्ट। इन्वेजिव टेस्ट में फर्स्ट हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में मेनली हम बीएनपी एंड प्रो बीएनपी लेवल चेक करवाते हैं। बीएनपी एंड प्रो बीएनपी आर मार्कर ऑफ हार्ट फेलियर। तो बीएनपी नॉर्मल बीएनपी लेवल लेस देन 100 होता है। अगर पेशेंट की एज 75 से कम है तो नॉर्मल प्रो बीएनपी लेवल लेस देन 125 और कोई पेशेंट की एज 75 से ज़्यादा है तो नॉर्मल प्रो बीएनपी लेवल लेस देन 450 pg/ml। और बीएनपी एंड प्रो बीएनपी के साथ दूसरे भी ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट है, रीनल फंक्शन टेस्ट है, लीवर फंक्शन टेस्ट है, लिपिड प्रोफाइल है और अदर ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करवाए जाते हैं। देन कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी की मदद से हम कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज या नेरोइंग है वो देख सकते हैं। देन नेक्स्ट टेस्ट कार्डियक कैथोग्जी। कार्डियक कैथोग्जी में मेनली 2 टाइप्स होते हैं, राइट साइड कार्डियक कैथोग्जी एंड लेफ्ट हार्ट कार्डियक कैथोग्जी। तो कैथोग्जी की मदद से हम हार्ट का जो फंक्शन है वो और स्ट्रक्चर है वो विजुलाइज कर सकते हैं। हार्ट में ब्लड फ्लो कैसा है वो देख सकते हैं। हार्ट के चैम्बर्स में वो प्रेशर कितना है वो भी हम देख सकते हैं और कोई ब्लॉकेज या नेरोइंग है वो भी हम कार्डियक कैथोग्जी में देख सकते हैं। तो ये तीनों हो गए इन्वेजिव टेस्ट ऑफ हार्ट फेलियर। नाउ वी सी नॉन इन्वेजिव टेस्ट ऑफ हार्ट फेलियर। नॉन इन्वेजिव टेस्ट में फर्स्ट है एक्सरे। एक्सरे में हम क्या देख सकते हैं कि हार्ट की साइज है और लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि फ्लूइड कलेक्शन है, एम्फाइसेमा है या कोई एडिमा है, वो सब हम एक्सरे में डिटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पिक्चर्स है। जो राइट साइड पे है वो पल्मोनरी एडिमा की पिक्चर्स है, जो लेफ्ट वाली है वो कार्डियोमेगाली की पिक्चर्स है। कार्डियोमेगाली में जो हार्ट की साइज होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट टेस्ट इज ईसीजी। ईसीजी इज अ पेनलेस एंड क्विक प्रोसीजर। ईसीजी में हम हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर पाते हैं। तो ईसीजी की मदद से अगर पेशेंट को कोई पास्ट हार्ट अटैक की हिस्ट्री है या कोई ब्लॉकेज है, एरिथमिया है, वो सब हम ईसीजी की मदद से डिटेक्ट कर पाते हैं। देन नेक्स्ट इज इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम में हम हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन चेक करते हैं और इकोकार्डियोग्राम की मदद से हमें पता चलता है कि कोई पेशेंट को कोई वाल्वुलर कंडीशन है, पेशेंट की जो हार्ट की वॉल है वो कैसी है, हार्ट का जो साइज़ है और ब्लड फ्लो कैसा है, वो सब हम इकोकार्डियोग्राम में डिटेक्ट करते हैं। इकोकार्डियोग्राम में मेनली हम इजेक्शन फ्रैक्शन रेशियो चेक करते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड हार्ट कैन पंप इन ईच कॉन्ट्रैक्शन। तो नॉर्मल पेशेंट में इजेक्शन फ्रैक्शन रेशियो 50 से 70% होता है और अगर पेशेंट को हार्ट फेलियर है तो इजेक्शन फ्रैक्शन रेशियो 40 से कम हो जाता है। देन सीटी स्कैन, एमआरआई, स्ट्रेस टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज अ ट्रेडमिल टेस्ट। जब भी कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता है तो हार्ट कैसे काम करता है वो हम इस टेस्ट से पता लगा सकते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को हम एक ट्रेडमिल मशीन पे चलाते हैं और वो एक्टिविटी के दौरान हम पेशेंट के वाइटल्स चेक करते हैं। तो इसकी मदद से हमें पता चलता है कि एक्सरसाइज फेज में और स्ट्रेसफुल इवेंट में हार्ट कैसे काम करता है। तो दिस ऑल आर द नॉन इन्वेजिव टेस्ट ऑफ हार्ट फेलियर। पेशेंट में हार्ट फेलियर के सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की मदद से हमने डिटेक्ट कर लिया है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है। तो उसके लिए हमें पेशेंट को कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो यहाँ लेट्स वी डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। फर्स्ट है फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में यहाँ पे एक न्यूमोनिक है जो आपको हेल्प करेगा, जो ड्रग हार्ट फेलियर में यूज़ होती है उसको याद रखने में। दैट वाज द डेड बॉन्ड क्लैश।
इन डेड बॉन्ड क्लास डी स्टैंड फॉर डिजिटालिस, डिजिटालिस में डिगोक्सिन लिगोक्सिन देते हैं। देन ए स्टैंड फॉर एसी इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर में हम सारी प्रिल वाली ड्रग देते हैं, जैसे कि एनालेप्रिल है, रेमिप्रिल है। देन डी स्टैंड फॉर डोब्यूटामाइन। देन बी स्टैंड फॉर बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर में हम सारे लोल वाले ड्रग देते हैं, जैसे कि मेटोप्रोलोल है, कार्बिडोलोल है, बिजोप्रोलोल है। देन ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजनेशन, अगर पेशेंट को ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी रहती है तो हम ऑक्सीजन थेरापी प्रोवाइड करते हैं। देन एन स्टैंड फॉर द नाइट्रेट। देन डी स्टैंड फॉर डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स ऑल्सो नोन एज द वाटर पिल। तो डायूरेटिक है वो एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन को रिड्यूस करता है। उसमें हम फ्रूसेमाइड या टोरसेमाइड वो सारी डायूरेटिक्स ड्रग देते हैं। देन टी स्टैंड फॉर द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसमें हम इवाबिल प्रोवाइड करते हैं। देन एल स्टैंड फॉर लाइफस्टाइल चेंजेस, हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं कि वेट मैनेजमेंट के बारे में, हेल्दी हार्ट डाइट के बारे में, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के बारे में वो हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं। देन ए स्टैंड फॉर द एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, उसमें हम वल्साटल देते हैं। देन ए ऑल्सो स्टैंड फॉर द ARNI इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रग लाइक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर एंड नेक्रिलाइसिन इनहिबिटर, उसमें वाइमाडा इंक्लूड होता है। वाइमाडा इज वेरी इफेक्टिव ड्रग फॉर द हार्ट फेलियर। ए स्टैंड फॉर द सोडियम रिस्ट्रिक्शन, हम एजुकेट पेशेंट अबाउट द लो सोल्ट डाइट। Then H stand for the hydrolysis. So these all are the medical management of heart failure. Now we discuss about the device and surgical procedure for heart failure. तो first है कि AICD, then CRT, angioplasty, CABG, then valvular surgery, then ventricular assisted device, then heart failure. So these all are the device and surgical procedure for the heart failure. So let's we discuss about the all device and surgical procedure in detail. फर्स्ट डिवाइस इज AICD। AICD स्टैंड फॉर द ऑटोमेटेड इम्प्लांटेड कार्डियक डिफिब्रिलेटर। अगर पेशेंट को कोई सीवियर एरिथमियाज रहता है तो हम पेशेंट को ये डिवाइस के बारे में एडवाइस कर सकते हैं। तो ये डिवाइस में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चेस्ट में इम्प्लांट किया जाता है और उसकी जो लीड है वो हार्ट पे अटैच रहती है। तो जब भी कोई सीवियर एरिथमियाज या कोई कंडीशन अराइज होती है तो ये मशीन उसको सेंस करके वहाँ पे पेसिंग या शॉक डिलीवर करता है। The next device is CRT. CRT stand for the cardiac resynchronizing therapy, also known as the biventricular pacing. तो एक प्रोसीजर में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस को चेस्ट पे इम्प्लांट किया जाता है और उसकी जो दो लीड है वो दोनों वेंट्रिकल्स पर अटैच रहती है। तो जब भी वेंट्रिकल्स अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाते और ब्लड को पंप नहीं कर पाते तो ये डिवाइस उस कंडीशन को सेंस करके वहाँ पे पेसिंग डिलीवर करती है टू सिंक्रोनाइज टू कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल्स इन सिंक्रोनाइजिंग वे। देन एंजियोप्लास्टी, अगर पेशेंट को कोई कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है तो वहाँ पे बलून की मदद से एक स्टेंट रख दिया जाता है जो ब्लड को फ्रीली फ्लो करने में हेल्प करता है। देन CABG स्टैंड फॉर द कोरोनरी आर्टेरियल बाईपास ग्राफ्ट। तो जब भी पेशेंट को कोई कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है तो वहाँ पे कोई हेल्दी ग्राफ्ट जैसे कि सिफेलिक वेन है, रेडियल आर्टरी है, लीमा है, तो वहाँ से एक हेल्दी ग्राफ्ट को हार्वेस्ट करके जो अफेक्टेड आर्टरी है वहाँ पे एक पाथवे क्रिएट किया जाता है जो ब्लड को फ्रीली फ्लो करने में हेल्प करता है। देन वाल्वुलर सर्जरी, अगर पेशेंट को कोई वाल्वुलर प्रॉब्लम है, कोई वाल्वुलर डिजीज कंडीशन है तो वाल्व रिप्लेस या रिपेयर की मदद से हम वो कंडीशन को ओवरकम कर सकते हैं। The next device is a ventricular assisted device. Ventricular assisted device is a electric and expensive device, also known as the artificial heart and bridge to the transplant. तो ये डिवाइस जब भी हार्ट का वेंट्रिकल का फंक्शन कम हो जाता है और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कम हो जाती है तो उसकी वजह से जो वेंट्रिकल है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को ये डिवाइस पे रख सकते हैं। तो ये डिवाइस में यहाँ पे एक पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि दो कनेक्टर है। जो एक कनेक्टर है वो वेंट्रिकल्स में अटैच किया जाता है और दूसरा है वो ऑर्टा में कनेक्ट किया जाता है। तो ये मशीन की मदद से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स से ऑर्टा में पंप करने में ये डिवाइस हेल्प करती है। जब भी पेशेंट को सूटेबल हार्ट नहीं मिलता है और पेशेंट को ज़्यादा वेट करना पड़ता है तो उस वेटिंग पीरियड में हम पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस पे रख सकते हैं। जो वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस के मेनली टू टाइप्स है, राइट वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्टेड डिवाइस। ये डिवाइस एक पोर्टेबल डिवाइस है, इसके साथ हम पेशेंट को डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। तो जब भी हम पेशेंट को ये डिवाइस के साथ डिस्चार्ज करते हैं तो पेशेंट को इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में मेनली हमें एजुकेट करना पड़ता है। सो दिस ऑल आर द डिवाइस एंड सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द हार्ट फेलियर।
अगर पेशेंट को एंड स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर है और कोई भी डिवाइस या सर्जिकल प्रोसीजर पेशेंट की कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर पाते, तो हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बनता है जो है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में जो पेशेंट का डिजीज हार्ट है उसको रिमूव करके वहाँ पे हेल्दी डोनर का हार्ट रिप्लेस किया जाता है। अगर रेसिपिएंट और डोनर के कोई क्राइटेरिया मैच होते हैं, जैसे कि हाइट एंड वेट है, ब्लड ग्रुप है, पीएचएम है, HLA टाइपिंग है, तो अगर पेशेंट और रेसिपिएंट और डोनर के क्राइटेरिया मैच होते हैं तो ही हम वो हार्ट को एक्सेप्ट कर पाते हैं, और हार्ट ट्रांसप्लांट से पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सकती है। Then we discuss about the other management. Other management, and then first one is the cardiac rehabilitation. Cardiac rehabilitation help to improve the cardiovascular health of the patient, and also counseling for the maintenance stress and exercise. Then second one is the lifestyle modification. In that we educate our patient about the quit any bad habits like smoking and alcoholism, maintaining weight, then fluid restriction up to the 1.5 liter per day. Then educate about the healthy heart diet like low salt diet and DAS diet. Then being physically active and stress management. Then educate about the daily vitals monitoring like heart rate and blood pressure. देन एजुकेट अबाउट द एडिक्वेट स्लीप एंड रेस्ट। देन अगर पेशेंट को कोई फ्लू या कोई निमोनिया है तो पेशेंट को वैक्सीनेशन के लिए एजुकेट कर सकते हैं। देन थर्ड वन इज पेलिएटिव केयर एंड हॉस्पाइस केयर। पेलिएटिव केयर में हम पेशेंट को अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक केयर देते हैं। देन हॉस्पाइस केयर में हम एंड ऑफ लाइफ केयर देते हैं। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में हम फर्स्ट नर्सिंग असेसमेंट करेंगे। उसमें हम पेशेंट की सारी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम्स है, पेशेंट की पास्ट एंड प्रेजेंट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और कोई एलर्जी है कि नहीं है, और पेशेंट की कोई बेड हैबिट्स है कि नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम हिस्ट्री कलेक्शन में कलेक्ट करेंगे। पेशेंट का हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे। पेशेंट के जो वो लंग साउंड है वो स्कल्ट करेंगे कि कोई क्रैकल्स या कोई विजिंग साउंड है कि नहीं है। पेशेंट की नेक इंस्पेक्ट करेंगे कि कोई जुगुलर वेन डिस्टेंशन है कि नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी डिफेक्ट है कि नहीं है, वो हम चेक करेंगे। पेशेंट की जो अब्डोमेन है वो चेक करेंगे कि कोई असाइटिस है कि नहीं। देन लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे, पेशेंट की जो स्लीपिंग पैटर्न है वो आइडेंटिफाई करेंगे। देन नर्सिंग इंटरवेंशन। तो फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन है टू मेंटेन एडिक्वेट कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करने के लिए हम क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हैं? तो पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, पेशेंट के वाइटल्स चेक कर सकते हैं, पेशेंट को सेमी फाउलर्स पोजीशन दे सकते हैं, पेशेंट की जो मोबिलिटी है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जो पेशेंट के हार्ट और लंग साउंड वो स्कैन कर सकते हैं कि कोई विजिंग या कोई क्रैकर्स है कि नहीं है। देन पेशेंट की जो सेंट्रल वेनस प्रेशर है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। देन कोई ऐसी सिचुएशन है जो पेशेंट की एंग्जाइटी लेवल को बढ़ा देती है तो वो सिचुएशन को हम अवॉइड करते हैं, और पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। अगर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन उस पे पेशेंट पे क्या इफेक्ट है और कोई साइड इफेक्ट है वो हम सब नर्सिंग इंटरवेंशन में चेक करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज टू रिस्टोरिंग द फ्लूइड बैलेंस। तो फ्लूइड बैलेंस को रिस्टोर करने के लिए हम क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हैं? तो पेशेंट को डायरेक्टिक दे सकते हैं एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर। देन पेशेंट का जो इनपुट आउटपुट चार्ट है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। पेशेंट के जो वेट है वो डेली मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पेशेंट को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन के बारे में एजुकेट कर सकते हैं कि आपको सिर्फ 1.5 लीटर पर डे लिक्विड डाइट लेनी है। देन कोई पेशेंट को कोई हाइपोकैलेमिया के साइन है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। देन पेशेंट को कोई एडिमा है तो एडिमा की वजह से प्रेशर सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वहाँ पे हम पेशेंट को एयर मेट्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप पेशेंट को सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इंटरवेंशन टू इम्प्रूविंग द ऑक्सीजनेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या केयर प्रोवाइड कर सकते हैं? तो पेशेंट को सेमी फाउलस पोजीशन दे सकते हैं, पेशेंट का कोट है वो एलिवेट रख सकते हैं, पेशेंट को एवरी फोर्थ वाले पेशेंट की लंग साउंड उसका कर सकते हैं कि कोई वीजिंग या क्रिकल्स है कि नहीं है, पेशेंट की एवरी 2 वाली पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं कि आप पेट भर के खाना ना खाएं। अगर जो पेशेंट का पेट भर के खाना खाएगा तो उसका प्रेशर डायफ्राम पे बढ़ सकता है कि डायफ्राम पे पेशेंट प्रेशर बढ़ने की वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। पेशेंट को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में एजुकेट करते हैं। अगर पेशेंट को ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत रहती है तो डॉक्टर्स ऑर्डर के साथ हम पेशेंट को ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। और पेशेंट को ऑक्सीजनेशन थेरापी से भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी कंटिन्यू है तो कोई भी हम मैकेनिकल वेंटिलेटरी सपोर्ट भी दे सकते हैं।
I hope this presentation helped to clear your doubt about the heart failure. Thank you. Thank you, Charmi sister. Now I would like to invite Miss Asman Amin, and she will share knowledge regarding shock. Good afternoon, all of you. Myself, Asman Amin, trained cardiac staff nurse in MICU 2, working in a UN Mehta Institute and Cardiology and Research Center. In beginning, I would like to thankful our Honorable Director Sir and entire nursing team to great opportunity in this CNE. Today my topic is shock. शॉक के बारे में आप क्या जानते हैं? शॉक इज़ अ सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, इज़ अ सीरियस मेडिकल कंडीशन जिसकी वजह से जो क्रिटिकल इल पेशेंट है वो डेथ हो जाते हैं. अब वी विल डिस्कस अबाउट द शॉक. शॉक का डेफिनेशन क्या है, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसमें साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और मैनेजमेंट क्या है, वो हम देखेंगे. तो डेफिनेशन क्या है? शॉक में क्या होता है? इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है. इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है हमारी बॉडी में हाइपोपरफ्यूजन हो जाता है. इंड्यूस द इम्बैलेंस बिटवीन द डिलीवरी एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से सेल्यूलर डिसफंक्शन हो जाते हैं. उसके बाद हम देखेंगे शॉक के टाइप्स क्या है. शॉक के 6 टाइप है. लो वॉल्यूम स्ट्रोक और ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक. लो वॉल्यूम स्ट्रोक में हाइपोवॉल्यूमिक, कार्डियोजेनिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक आता है. डिस्ट्रीब्यूटेड शॉक में सेप्सिस, एनाफाइलेटिक एंड न्यूरोजेनिक शॉक आता है. आज हम 3 टाइप के शॉक पढ़ने वाले हैं. पहला है हमारा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड थर्ड वन इज सेप्टिक शॉक. तो पहला है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का मतलब क्या होता है? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक मतलब हमारे बॉडी में सडनली फ्लूइड और ब्लड वॉल्यूम का लॉस हो जाना, उसको हम हाइपोवॉल्यूमिक शॉक बोलते हैं. हाइपोवॉल्यूमिक शॉक किस वजह से होता है? तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक ड्यू टू द एक्सटर्नल हेमरेज की वजह से होता है और सडनली हमारे बॉडी में से फ्लूइड लॉस हो जाने की वजह से होता है. जैसे कि सीवियर बर्न हो जाता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, डायरिया एंड वॉमिटिंग हो जाने सीवियर वॉमिटिंग हो जाने की वजह से भी ड्यू टू द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है. हेमरेज में, एक्सटर्नल हेमरेज में क्या होता है? ओपन फ्रैक्चर, वुंड, एक्सीडेंट, ट्रोमा होता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट में एक्सटर्नल ब्लीडिंग होता है, तो भी पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाता है. इंटरनल हेमरेज में क्या आता है? इंटरनल हेमरेज में इंटरनल इंजरी होती है, स्प्लीन, लीवर, मेंसेट्री और पेल्विस में जो भी इंटरनल ऑर्गन है उसमें ब्लीडिंग होता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाता है. तो आगे हमने देखा कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक कैसे होता है. जो डिहाइड्रेशन की वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होता है. तो हम देखेंगे अब हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के पैथोफिजियोलॉजी क्या है. हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के पैथोफिजियोलॉजी में जो हमने पढ़ा कि सडन लॉस ऑफ ब्लड वॉल्यूम और फ्लूइड लॉस हो जाता है वास्कुलर स्पेस में से, जिसकी वजह से इनएडिक्वेट परफ्यूजन हो जाता है. इनएडिक्वेट परफ्यूजन होने की वजह से सेल हाइपोक्सिक हो जाता है, सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी डेफिसिएट हो जाती है. एनर्जी डेफिसिएट होने की वजह से लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाता है और पीएच फॉल हो जाती है, जिसकी वजह से एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होने लगता है बॉडी में. एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्टार्ट होता है, उसकी वजह से पेशेंट में मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट होता है. मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से क्या होता है? जो हमारी वेसल्स होती है वो वासोकंस्ट्रिक्ट हो जाती है और उसकी वजह से जो हमारी प्री पैपिलरी स्पिंचर्स है उसमें न्यूट्रिशन और ब्लड की कमी हो जाती है. उसमें ब्लड और न्यूट्रिशन पूरी तरह से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से सेल्स मेम्ब्रेन होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है और उसकी वजह से जो सोडियम और पोटेशियम का पंप होता है वो भी डिक्रीज़ होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में इंट्रासेल्युलर लाइसोसोम रिलीज होते हैं और साथ ही साथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं और उसकी वजह से सर्कुलर सिस्टम में टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर होते हैं, जिसकी वजह से कैपिलरी एंडोथेलियम है वो डैमेज हो जाता है. उसकी वजह से डिस्फंक्शन और डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसकी वजह से सेल डेथ हो जाता है. ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक.
देन हम देखेंगे हाइपोवॉलेमिक शॉक के स्टेजेस क्या है। हाइपोवॉलेमिक शॉक के 3 स्टेजेस है। कंपनसेशन इनिशियल शॉक जिसके पैथोजेंस है वाइडली स्प्रेड वासोकंस्ट्रक्शन, पल्मोनरी फ्लूइड कन्वर्जेशन ऑफ द किडनी, स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रिनल मेडुला। उसकी इफेक्ट क्या होती है, बॉडी में टेकिकार्डिया हो जाता है और पेशेंट में कोल्ड क्लैमी स्किन हो जाती है, जो हमारा इनिशियल स्टेज है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मैं दूँ, हमारी बॉडी में 1000 ml जितना वाटर होता है, वो उससे ज़्यादा या उससे कम जो बॉडी में से फ्लूइड लॉस हो जाता है, तो हमारी बॉडी एक कंपनसेशन मैकेनिज्म स्टार्ट करती है जो हमारी बॉडी में अपने आप ही अपने आप ही बनने लगता है और वो इनिशियल स्टेज में ही ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बॉडी में रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर पेशेंट में ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो गया जिसका मतलब है प्रोग्रेसिव डिकम्पोजिशन शॉक होता है। उसमें 1000 ml से ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाता है, जो होता है पल्मोनरी हाइपोपरफ्यूजन की वजह से और टिश्यू इस्चीमिया की वजह से। उसके कॉजेज़ क्या है, उसमें उसका बॉडी में क्या इफेक्ट होता है, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, पेशेंट में टैकेपनिया होता है और मेंटल स्टेटस भी डिसोरिएंटेड हो जाता है। प्रोग्रेसिव डिकम्पनसेशन शॉक में क्या होता है, हम उसमें पेशेंट को सर्वाइव कर सकते हैं, वो प्रोग्रेसिव स्टेट में होता है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में 1000 ml से ज़्यादा वाटर लॉस हो गया है, तो हम पेशेंट को उस हिसाब से रिक्वायरमेंट दे के हम पेशेंट को सर्वाइव और क्योर कर सकते हैं। पर उससे ज़्यादा हो गया है, जैसे कि हम नेक्स्ट स्टेज में देखेंगे इरिवर्सिबल डिकम्पनसेशन शॉक है, जो 2000 ml से भी ज़्यादा हमारे बॉडी में फ्लूइड लॉस होने लगता है। जिसके कॉजेज़ क्या है, तो उसमें पल्मोनरी प्रोग्रेसिवली वासोडाइलेशन होता है, इंक्रीज द वास्कुलर परमेबिलिटी हो जाती है, मायोकार्डियल डिप्रेस फैक्टर होता है, एनोक्सिक डैमेज हो जाता है और हाइपरकोगुलेबिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से भी पेशेंट में पूरा बॉडी ऑर्गन में एक ऑर्गन फेल होने लगता है। जैसे कि ब्रेन में हाइपोक्सिक एनसेफेलोपैथी हो जाती है, हार्ट में मायोकार्डियल नेक्रोसिस हो जाता है, लंग में ARDS हो जाता है, किडनी में ANT हो जाता है, जो ट्यूबुलर सेल्स हैं वो नेक्रोसिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम हो जाता है पेशेंट का, और एड्रिनल्स वो भी नेक्रोसिस हो जाता है, GI हेमरेज गैस्ट्रोनोपैथी हो जाता है, लीवर नेक्रोसिस हो जाता है और ब्लड DIC होता है। ये थे हमारे 3 स्टेजेस, कंपनसेशन, प्रोग्रेसिव डिकम्पनसेशन और इरिवर्सिबल डिकम्पनसेशन शॉक। ये तो हमने पढ़ लिया हाइपोवॉलेमिक शॉक के स्टेजेस क्या हैं। तो स्टेजेस के बाद हम देखेंगे हाइपोवॉलेमिक शॉक का मैनेजमेंट कैसे करना है। हाइपोवॉलेमिक शॉक का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो हमने देखा कि पेशेंट में टैकेपनिक हो जाता है, पेशेंट का यूरिन आउटपुट कम हो जाता है, तो हमें उसका मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। तो हम पहले ABC एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन देखेंगे। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एयरवे क्लियरेंस करना है। उसके बाद जो भी पेशेंट में ट्रोमा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल, उसको उस हेमरेज को हमें कंट्रोल करना है। उसके बाद हम पेशेंट में जो भी फ्लूइड लॉस हुआ है, हमने हाइपोवॉलेमिक शॉक का डेफिनेशन देखा कि हाइपोवॉलेमिक शॉक में पेशेंट को सडनली ब्लड लॉस और फ्लूइड लॉस हो जाता है। तो वो जो फ्लूइड लॉस और ब्लड लॉस हुआ है उसका भी हमें रिक्वायरमेंट्स देना है। तो उसके लिए हम ऑप्टेन IV एक्सेस विद द वाइट कैन्यूला डालेंगे, जो इंट्राकैथ हमारा 16 या 18 नंबर का होता है, वो डाल के हम उसमें जो भी हमारा फ्लूइड रिक्वायरमेंट है, आइसोटोनिक सलाइन है, रिंगल लैक्टेक है, और हम ब्लड लॉस हो गया होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी हम देंगे हम पेशेंट को, जिसकी वजह से पेशेंट में जो भी फ्लूइड लॉस हुआ है वो फुलफिल हो जाएगा। और उसके बाद हम सप्लीमेंट ऑफ द ऑक्सीजन देंगे। आगे हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, सेल्स हाइपोक्सिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन देना भी ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन सप्लीमेंट्स भी हम पेशेंट को देंगे। तो हमने मैनेजमेंट ऑफ गोल्स तो देख लिया। आफ्टर उस पर सिक्योरिंग में हम क्या करेंगे, स्टॉप द ब्लीडिंग। जो भी कट लगा है या तो हेमरेज हुआ है, उसका ब्लीडिंग स्टॉप हुआ है कि नहीं वो हम देखेंगे। रिस्टोर द वॉल्यूम, हमारे पेशेंट की बॉडी में से जो भी वॉल्यूम जो कम हो गया है वो रिस्टोर हुआ है कि नहीं वो हम देखेंगे। उसके बाद करेक्ट एनी इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस
डिस्टर्बेंस, हमारे बॉडी में से जो इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए होंगे वो हम इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर ब्लड इन्वेस्टिगेशन से जैसे कि LFT RFT उसकी वो करवाएंगे और हम जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हुए हैं वो सिक्योर करवाएंगे। और एसिड बेस डिस्टर्बेंस हुआ है, पेशेंट में एसिडोसिस हो जाता है, तो देखा हमने हाइपोपैथोफिजियोलॉजी में कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो एसिडोसिस होता है तो हमें वो भी करेक्शन करना है, तो वो डिस्टर्ब हुआ है तो ये हाइपोवोलेमिक शॉक में हमें मैनेज करना है। और ये मैनेज करने के बाद हमें मॉनिटरिंग क्या करना है, तो यूरिन आउटपुट होता है, यूरिन आउटपुट मैनेजमेंट करना है, वाइटल साइंस है, स्किन परफ्यूज़न है, और हमारे बॉडी में जो O2 की कमी हो गया था तो SpO2 लगा के हमें पल्स ऑक्सीमीटर लगा के हमें SpO2 भी मेंटेन करते रहना है। जिसके बाद हम ये हमारा हो गया पूरा हाइपोवोलेमिक शॉक। हमने देख लिया हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक का पैथोफिजियोलॉजी क्या था, उसके स्टेजेस कैसे हैं और हमें मॉनिटर क्या क्या करना है। जिसके बाद आता है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या है? कार्डियोजेनिक शॉक वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। हम हॉस्पिटल प्रीमाइसिस में काम करते हैं तो हमने लगातार कार्डियोजेनिक शॉक के पेशेंट देखे होंगे। तो कार्डियोजेनिक शॉक कैसे होता है? Cardiogenic shock is a state of end organ hypoperfusion due to the cardiac failure. Cardiogenic shock किस वजह से होता है? When the heart has been damaged so much that the unable to the supply enough blood to the organ of the body. हार्ट जो होता है उसको ब्लड सप्लाई पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा होता है, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक होता है। तो कार्डियोजेनिक शॉक में जो ब्लड हार्ट का पंपिंग है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कॉजेज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक क्या है। तो वो दो टाइप के होते हैं, सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है और डायस्टोलिक डिसफंक्शन होता है, जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज में अक्यूट MI हो जाता है और उससे में वो मोस्ट कॉमन है। एक्यूट MI में जो हार्ट हमने देखा कि कोरोनरी आर्टरीज है उसमें ब्लड सप्लीमेंट्स नहीं मिल पा रहा होता है, जिसकी वजह से वहाँ मायोकार्डियल टिश्यू वो नेक्रोसिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से MI होता है। और इश्चेमिया में क्या होता है कि ब्लड और न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे होते हैं, जिसकी वजह से इश्चेमिया होता है। तो वो उसकी वजह से भी कार्डियोजेनिक शॉक में पेशेंट जाता है। और अदर कंडीशन में क्या है, सीवियर मायोकार्डाइटिस होता है। उसकी मायोकार्डाइटिस हार्ट मसल्स होते हैं वो इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। एंड स्टेज ऑफ कार्डियोमायोपैथी होता है। प्रोलॉन्ग तो कार्डियोपल्मोनरी बाईपास होता है। और डायस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होता है, उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो है ही, साथ ही साथ वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाता है। जो वेंट्रिकुलर है उसकी वॉल थिकनेस हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट का ब्लड है वो पूरी तरह से ठीक तरह से पंप नहीं कर पाता है। तो ये थे हमारे कॉजेस ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। एरोटिक रिगर्जिटेशन किस वजह से होता है, ऑर्टिक डिसेक्शन और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से होता है। और उसके बाद होता है माइट्रल रिगर्जिटेशन, वो किस वजह से होता है, तो हमने देखा कि MI होने की वजह से जो हार्ट का मायोकार्डियल के मसल्स से वो नेक्रोसिस हो जाते हैं। पैपिलरी मसल्स रप्चर हो जाने की वजह से भी माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है। और साथ ही साथ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइसिटी की वजह से भी माइट्रल रिगर्जिटेशन होता है। और हमारे प्रोस्थेटिक वाल्व है जो प्रोस्थेटिक वाल्व में दो टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल वाल्व्स और बायोलॉजिकल वाल्व। मैकेनिकल वाल्व्स में क्या होता है, जो उसमें फ्रैक्चर हो जाता है, जैम्बिंग हो जाता है, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से भी पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जाता है। और बायोलॉजिकल में क्या होता है, जो डिजनरेशन विद द कप्स होता है वो टेयर हो जाते हैं, उसकी वजह से भी पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जाता है। ये था वाल्वुलर स्ट्रक्चर का अबनॉर्मलिटी। अब हम देखेंगे अरिथमिया में क्या होता है, हार्ट जो है हमारा 0.8 सेकेंड्स नॉर्मली रिदम्स पे पंप करता है। जो ज़्यादातर 0.8 सेकेंड से ज़्यादा हमारा पंपिंग हो जाएगा, हार्ट पंप करने लगेगा, तो वेंट्रिकुलर और VT और VF होने के चांसेस हो जाएंगे। ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है और साइनस ट्रैकिकार्डिया भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जाता है।
और अदर कंडीशन में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाता है, एचओसीएम विद द सीवियर आउटफ्लो ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और पेशेंट लगातार हाइपोवॉलेमिक शॉक एंड सेप्सिक शॉक में रहता है तो भी कार्डियोजेनिक शॉक में जाने के चांसेस रहते हैं पेशेंट में। अगर बीटा ब्लॉकर्स एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का ओवरडोज हो जाता है तो भी पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में जाता है। ये हमने देख लिया क्या क्या कॉजेज़ है कार्डियोजेनिक शॉक में जाने के। अब इसके बाद हम देखेंगे कार्डियोजेनिक शॉक का पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो हमने आगे देखा कॉजेज़ में कि पहले हम एक्यूट एमआई होता है, तो एक्यूट एमआई मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो जाने की वजह से मायोकार्डियल जो होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है। वो कैसे होता है, वो दो टाइप्स में होता है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन और डायस्टोलिक डिसफंक्शन। सिस्टोलिक पे क्या होता है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है, वेसल्स जो होती है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो कोरोनरी परफ्यूजन है वो भी कम, कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर्स भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से इस्चीमिया में जाता है। और साथ ही साथ डायस्टोलिक में क्या होता है, डायस्टोलिक में जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर का एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है। पल्मोनरी कंजेशन होने की वजह से हाइपोक्सीमिया हो जाता है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से भी इस्चीमिया होता है। ये इस्चीमिया होने की वजह से ये पूरा प्रोसेस प्रोग्रेसिवली होता रहता है, तो मायोकार्डियल जो होता है वो डिसफंक्शन हो जाता है और वहाँ के जो सेल्स हैं वो डेथ हो जाते हैं। ये पूरा था हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक हमने देख लिया। उसके बाद हम देखिए कि रिस्क फैक्टर क्या आते हैं। रिस्क फैक्टर में होता है ओल्डर एज, प्रायर एमा एंड डायबिटीज़ मेलाइटस, हाइपरटेंशन, एंट्रियोवल एमआई, एक्सटेंसिव कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर एंड STMI ऑफ न्यू LBB। ये पूरे रिस्क फैक्टर होने की वजह से भी, ये डिजीज़ होने की साथों साथ भी पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक होता है, तो ये रिस्क फैक्टर में आते हैं। रिस्क फैक्टर के बाद हम देखेंगे डायग्नोसिस इवैल्यूएशन कैसे करना है। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन के लिए हमें पेशेंट का पूरा प्रॉपर एग्जामिनेशन करना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है, प्रॉपर हिस्ट्री लेना है पेशेंट का, ECG देखना है, एक्सरे करवाना है, इकोकार्डियोग्राम करवाना है। इकोकार्डियोग्राम के थ्रू भी हमें पेशेंट में पता चल जाएगा कि पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है कि नहीं। उसके बाद हमें ब्लड स्पेसिमेन भेजना है और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करवाना है, जैसे कि हम देखें CPK-MB, ट्रोपा, CBC, और ये सब करवाने की वजह से भी पेशेंट कार्डियोजेनिक शॉक में है कि नहीं वो हमें पता चलेगा। साथ ही साथ कार्डियोजेनिक शॉक, हम पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक में है तो साथ ही साथ हमें डायग्नोसिस इवैल्यूएट करने के पहले हमें उसमें सपोर्टिव थेरापी जो होता है वो स्टार्ट कर देना है, क्योंकि पेशेंट पुअर प्रोग्नोसिस में जाने से बच सकता है। ये हमने पूरा देख लिया डायग्नोसिस क्या होता है। उसके बाद हम देखिए कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स में क्या होता है, उसके कार्डियोजेनिक शॉक के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। तो साइन एंड सिम्टम्स में क्या होता है, तो हम देखेंगे साइंस में क्या होता है। पल्स जो होती है वीक हो जाती है, रैपिड हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है ड्यू टू द हार्ट ब्लॉक, सिस्टोलिक BP कम हो जाता है, पल्सलेस जो नैरो प्रेशर हो जाती है, टेक्निक हो जाता है, जैवी डिस्टेंस हो जाता है। जो S1 और S2 हमारे साउंड्स है वो सॉफ्ट सुनाई देते हैं, पर जो S3 साउंड है ग्लोबल सुनाई देता है, जिसका हॉर्सनेस जैसा साउंड हमें सुनाई देता है। और सिस्टोलिक सीवियर MR और VSR में सिस्टोलिक मर्मर साउंड सुनाई देते हैं, LV फेलियर में क्रैकल साउंड सुनाई हमको देते हैं, और साथ ही साथ पेशेंट में ओलिगोरिया भी हो जाता है। उसके बाद सिम्टम्स में क्या होता है, पेशेंट को चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन, वॉमिटिंग, डिसेप्निया, पेशेंट को ब्रीथलेसनेस होने लगता है, पेशेंट का जो स्किन है वो पेल हो जाता है, एपियर पेल दिखने लगता है, और पेशेंट कंफ्यूज, अल्ट्रासेंसोरमी और लेथार्जिक भी फील करने लगता है। ये थे पूरे हमारे कार्डियोजेनिक शॉक के साइन एंड सिम्टम। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट क्या होता है। हमारे ट्रीटमेंट के 3 क्राइटेरिया है। पहला है जनरल मेजर्स, उसके बाद हमें फार्मेकोलॉजिकल सपोर्ट्स में क्या देना है और मैकेनिकल सपोर्ट्स क्या देने हैं।
जनरल्स मेजर्स में हमें इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। एक्यूट एमा इनिशियल स्टेज पे थेरेपी स्टार्ट कर देनी है। मेंटेन द सिस्टमिक बीपी बाय द वासोप्रेसिस स्टार्ट करने दें, क्योंकि हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा कि वेसल्स हाइपोटेंशन हो जाता है, वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वासोप्रेसिस देना जरूरी है। Ensure the LV filling pressure by the existing volume status and उसके बाद करेक्ट द हाइपोक्सियम एंड एसिडोसिस। हाइपोक्सीमिया हो जाता है बॉडी में और एसिडोसिस हो जाता है, जो हमें करेक्ट करना है। एबीजी करवा के जो भी एसिडोसिस है वो करेक्ट करवाएंगे हम। मे नीड द वेंटिलेटर का सपोर्ट होगा तो हम वेंटिलेटर का सपोर्ट भी पेशेंट को देंगे, और साथ ही साथ हम नेगेटिव आइनोट्रोपिक्स जो है वो बंद कर देंगे, जैसे कि इंजेक्शन कॉर्डेरॉन, इंजेक्शन एनटीजी, वो हमें स्टॉप कर देना है। जिसके बाद हम देखेंगे फार्मेकोलॉजिकल सपोर्ट्स में हम क्या देंगे। फार्मेकोलॉजिकल सपोर्ट में हम वासोप्रेसिस स्टार्ट करने वाले हैं, तो इंजेक्शन नॉरएपिनेफ्रिन जो वासो कंस्ट्रिक्शन के तौर पे काम करता है, उसका डोज होता है 4 mg = 2 ml। इंजेक्शन डोपामिन डज डिपेंड द हेमोडायनेमिक इफेक्ट बेटर देन नॉनएपिनेफ्रिन, जिसका डोज होता है 200 mg = 5 ml। इंजेक्शन ब्यूटामिन जो सिंथेटिक सिंपैथोमेटिक एमाइन होता है, वो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एक्शन के दौर पे काम करता है, उसका डोज होता है 250 mg पर 5 ml। तो ये हमें वासोप्रेसिस है वो फार्मेकोलॉजिकल थेरापी में स्टार्ट कर देने हैं। जिसके बाद आता है हमारा मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट्स में क्या है, आईबीपी इंट्रा आयोटिक बलून पंप। इंट्रा आयोटिक बलून पंप है जो कॉन्ट्रापल्सेशन के तौर पे काम करता है। वो कार्डियोजेनिक शॉक में मेन होता है। कार्डियोजेनिक शॉक होता है तो हम इनिशियल स्टेज में इंट्रा आयोटिक आईबीपी पेशेंट में लगाते हैं, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट पेशेंट में बढ़ता है, जो परफ्यूज़न हुआ है वो भी कम हो जाता है, और जो हार्ट का पंपिंग है वो पूरी तरह से फंक्शनिंग हो जाता है। तो हमने देख लिया कि आईबीपी का फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। अक्यूट मायोकार्डियल रिगर्जिटेशन और एमआर और वीएसआर में भी जो है वो आईबीपी स्टेबलाइजेशन के तौर पे काम करता है। उसका वो हम कैसे डायग्नोसिस करेंगे, इको और डॉपलर की वजह से हम एमआर और वीएसआर को डायग्नोसिस कर सकते हैं, और उसमें भी हम इंजेक्शन डोब्यूटामिन और डोपामिन दे सकते हैं। नेक्स्ट लेट्स सी द वीडियो जो हमें पूरी तरह से दिखाएगा कि आईबीपी कैसे वर्क करता है, नॉर्मल फंक्शन क्या है, और तो हम देखेंगे वीडियो। This is Dr. Cal Shipley with a review of intra-aortic balloon pump usage in myocardial infarction with cardiogenic shock. Myocardial infarction, also known as heart attack, occurs due to disease in coronary arteries which impairs blood flow to the heart muscle, also known as the myocardium. Impaired coronary artery blood flow results in decreased delivery of oxygen and nutrients to the myocardium. If the loss of oxygen and nutrient flow reaches critical levels, a myocardial infarction occurs. The term myocardial infarction means death of cardiac muscle. Because it has the greatest workload of the cardiac chambers, the left ventricle has the largest demand for oxygen and nutrients, and therefore is most commonly involved in myocardial infarction. While infarction may occur anywhere within the left ventricular musculature, the apex of the ventricle, as shown here, is a commonly involved area. The dead muscle in the area of infarction no longer contracts. Cardiac output is reduced, and this reduction in output is directly proportional to the size of the infarct. If the area of the infarct is large enough, cardiac output may be critically reduced, resulting in significant loss of blood flow to all bodily organs and tissues. This is known as cardiogenic shock. Viewed from the patient's left side, the effect of a significant infarct on left ventricular contraction is apparent.
The effect of the infarct on left ventricular function is further amplified by the fact that with reduced cardiac output, there is also reduced flow through the coronary arteries. This sets up a vicious cycle which may result in extension of the infarcted area, a situation which, if not corrected rapidly, may lead to ventricular arrhythmias such as ventricular tachycardia or ventricular fibrillation, and ultimately cardiac arrest and death. In such situations, placement of an intra-aortic balloon pump may break the vicious cycle and stabilize cardiac function. Let's return again to our cross-sectional view of the infarcted left ventricle, viewed from the patient's left side. The balloon pump is typically inserted via the left or right femoral artery in the groin and then advanced into the upper aorta and positioned such that the end of the balloon is a couple of centimeters away from the origin of the left subclavian artery in the aortic arch. The balloon is capable of being inflated or deflated. During systole, the balloon is deflated. This creates suction within the aortic root, which draws blood into the aorta, increasing cardiac output and reducing the workload of the left ventricle. Cardiac output is increased, and so is flow to the coronary arteries. During diastole, the balloon is inflated. This creates positive pressure within the aorta, pushing blood back towards the left ventricle. Because the aortic valve is closed during diastole, the blood is pushed into the coronary arteries, further improving flow to the myocardium. The combination of improved coronary blood flow and increased cardiac output with decreased left ventricular workload is enough to stabilize many patients with myocardial infarction and cardiogenic shock. The inflation and deflation of the balloon pump is synchronized with the cardiac cycle via an external electronic module, which is typically attached to an electrocardiogram unit or a pressure transducer in the tip of the balloon. The synchronized inflation and deflation of the balloon pump is known as counterpulsation. Helium gas is used for inflation, as it has a low viscosity and moves rapidly through the extended tubing attached to the balloon. It is also less likely than air to embolize should the balloon rupture. It's important to note that the intra-aortic balloon pump is a temporary measure. It may be left in place for up to several days until other treatments have been utilized to improve the patient's cardiac condition. तो आगे हमने देखा कि कार्डियोजेनिक शॉक क्या था और कार्डियोजेनिक शॉक को हमें मैनेज कैसे करना है। तो हम उसके बाद हम देखेंगे सेप्टिक शॉक। तो सेप्टिक शॉक का मतलब क्या होता है? सेप्टिक शॉक जो होता है वो इन्फेक्शन होता है। सेप्टिक मतलब इन्फेक्शन जो पूरी बॉडी में, सिस्टम में इन्फेक्शन हो जाता है। तो सेप्टिक शॉक का डेफिनेशन क्या है?
Septic shock is a medical condition result from the severe infection and sepsis. It can cause multiple organ dysfunction. जो हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हो जाने की वजह से पेशेंट कैन ड्यू टू द सेप्टिक शॉक. सेप्टिक शॉक के कॉजेज़ क्या है? इकोलाई, पर्टुसिस, सेप्सिस, क्लेप्सिलिया, निमोनिया और प्री डिपॉजिट फैक्टर के तौर पे ट्रोमा, डायबिटीज़ मेलाइटस, स्टेरॉयड थेरेपी और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, ये सारे कॉजेज़ है उसके. तो मेन क्या होता है हमारे बॉडी में, ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होता है वो सेप्टिक शॉक में ज़्यादा देखने मिलता है. तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो किस तरह से हमारे बॉडी में एंटर करता है? तो स्किन की थ्रू भी हमारे बॉडी में जाता है, जीआई ट्रैक की वजह से भी, इनहेल करने की वजह से भी, और साथ ही साथ यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन के साथ ही साथ हमारे बॉडी में ग्राम नेगेटिव जो हमारे पिक्चर्स में दिखाया गया है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंक्लूड होता है. व्हाट कॉजेज़ ऑफ सेप्टिक शॉक? सेप्टिक शॉक के कॉजेज़ क्या है? तो ये भी कॉजेज़ होते हैं साथ ही साथ कि सेप्सिस कैन रिजल्ट फ्रॉम द बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शन. बैक्टीरियल, फंगल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी सेप्टिक शॉक होता है और ये इन्फेक्शन हॉस्पिटल और घर से भी लग सकता है. और सेप्टिक शॉक के कॉमनली ओरिजिनल कॉजेज़ क्या है? जो एब्डोमिनल और डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर भी इन्फेक्शन होने की वजह से भी पेशेंट सेप्टिक शॉक में जाता है. पेशेंट के साथ साथ लंग इन्फेक्शन होता है तो निमोनिया होने की वजह से भी पेशेंट सेप्टिक शॉक में जाता है. उसमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जैसे कि पेशेंट लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर वाला होता है, यूरिनरी कैथेटर लगाया होता है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से पेशेंट ड्यू टू द सेप्टिक शॉक में जाता है. रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इन्फेक्शन की वजह से भी पेशेंट सेप्टिक शॉक में जाता है. तो ये थे कॉजेज़ ऑफ सेप्टिक शॉक. जिसके बाद हम देखेंगे सेप्टिक शॉक का पैथोफिजियोलॉजी. हमने देखा कि इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल जो इन्फेक्शन की वजह से सेप्टिक शॉक होता है, तो इन्फेक्शन होता है बॉडी में. इन्फेक्शन होने की वजह से माइक्रोबियल टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं. माइक्रोबियल टॉक्सिन्स रिलीज़ होने की वजह से एक्टिव होस्ट जो होता है हमारा WBC वो डिफाइन मैकेनिज्म स्टार्ट करता है. डिफाइन मैकेनिज्म स्टार्ट होने की वजह से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एक्टिवली बढ़ जाता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन होने लगता है, जो एडिक्वेट भी होता है और इनएडिक्वेट भी होता है. एडिक्वेट में क्या होता है, जो हम इन्फेक्शन हुआ है वो माइक्रोबियल टॉक्सिन को क्लियर करके इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं. और इनएडिक्वेट में क्या होता है, जो इन्फेक्शन लगा है पूरी बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन हुआ है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ते ही रहते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू इंजर हो जाता है. टिश्यू इंजर होने की वजह से सेप्टिक शॉक होता है और मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट का डेथ हो जाता है. ये पूरा सेप्टिक शॉक का पैथोफिजियोलॉजी था. सेप्टिक शॉक को हम डायग्नोस कैसे करेंगे? सेप्टिक शॉक को डायग्नोस करने के लिए हम पेशेंट में रूटीनली माइक्रोबायोलॉजिकली कल्चर भेजेंगे. यूरिन CS है, ETCS है, ब्लड CS है, वो हम कल्चर्स भेजेंगे. ब्लड CS है, वो कल्चर भेजने के बाद हमें पता चलेगा कि पेशेंट में कौन से फंगल, बैक्टीरियल, वायरस जो भी है वो इन्फेक्शन लगा है, वो हमें पता चलेगा, जिसकी वजह से हम पेशेंट को इफ़ेक्टिव जो सेंसिटिव एंटीबायोटिक है वो हम थेरापी उसमें स्टार्ट कर पाएंगे. और साथ ही साथ हम पेशेंट के WBC और CBC भी करवाएंगे, जो वो करवाने की वजह से भी हमें पता चलेगा पेशेंट सेप्टिक शॉक में है कि नहीं है. सेप्टिक शॉक का साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? वो अर्ली स्टेज में भी होता है और लेट स्टेज में भी होता है. अर्ली स्टेज में क्या होता है, पेशेंट को सीवरिंग होता है, फीवर आ जाता है. और लेट स्टेज में क्या होता है कि पेशेंट कोल्ड और उसका स्किन होता है वो क्लैमी हो जाता है, एकदम ठंडा पड़ जाता है बॉडी. पेशेंट को एक्सट्रीमली पेन होने लगता है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है पेशेंट को. पेशेंट अल्ट्रा सेंसोरियम में जाता है, पेशेंट कन्फ्यूज, लेथार्जिक
फील लेथार्जिक महसूस करने लगता है, कंफ्यूज रहने लगता है, पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेशेंट ठीक तरह से ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा होता है, और पेशेंट कभी कभी हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाता है, पेशेंट में टेकीकार्डिया होने के भी चांसेस होते हैं। ये पूरे थे हमारे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ सेप्टिक शॉक। तो हम सेप्टिक शॉक का मैनेजमेंट देखेंगे। अर्लियर सेप्सिस इन द डायग्नोसिस टू ट्रीट, तो हमने सेप्टिक शॉक को डायग्नोसिस कर लिया है, तो हमें जो भी सेंसिटिव एंटीबायोटिक है जो इन्फेक्शन के सामने फाइट कर सकती है, वो हमें इंट्राविनसली पेशेंट को एंटीमाइक्रोबियल थेरापी देनी है। उसके बाद हमें वासोप्रेसिस देने हैं और इंसुलिन स्टेबिलिटी बढ़ानी है। इंसुलिन स्टेबिलिटी जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करना है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है। इन्फ्लामेशन जो हुआ है बॉडी में उसको रिड्यूस करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ द आईवी फ्लूइड्स और लार्ज अमाउंट ऑफ आईवी फ्लूइड देंगे जो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन हुआ है उसको कम करेगा और द बीपी इंक्रीज करेगा और ऑर्गन को भी ब्लड फ्लो ऑर्गन में ब्लड फ्लो बढ़ाएगा। और साथ ही साथ हम सर्जरी भी कर सकते हैं ऐसे पेशेंटों में। सर्जरी में भी परफॉर्म टू द रिमूव द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है उसको रिमूव कर सकते हैं, सच एज ए ड्रेन जो पस है उसमें ड्रेन करके हम उस पस को निकाल सकते हैं और इन्फेक्शन को निकाल सकते हैं। तो उसकी वजह से हम सर्जरी भी कर सकते हैं। एब्सेस द रिमूविंग ऑफ द इन्फेक्टेड टिश्यू को निकाल के भी हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये था हमारा पूरा सेप्टिक शॉक का मैनेजमेंट। आई होप इसके बाद आपको शॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, शॉक क्या है वो पता चल गया होगा। और अगर हमें हमारे हॉस्पिटल में ऐसे शॉक के पेशेंट देखने को मिलेंगे तो हम पेशेंट को सर्वाइव और क्योर कर सकते हैं। आई होप इसके बाद आपका शॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच लिसनिंग टू मी केयरफुली। थैंक यू सो मच। Good evening everyone. On behalf of our institute and our nursing team, I thank all the speaker, Miss Krishna Chaudhary, Miss Anjali Solanki, Miss Charmi Desai and Asman Amin for sharing their valuable knowledge with us and made this CNE more successful and memorable. Finally, a big thanks to our audience for attending our CNE and Happy New Year in advance to all, and thank you so much.